इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में तलाक सलासा बिल पेश की गई है। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा में तलाक सलासा बिल पेश की जा रही है। लोकसभा में नाज़रीन तलाक सलासा बिल पेश की जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने बिल पेश किया है। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद इस वक्त तलाक सलासा बिल पेश कर रहे हैं। इस वक्त ये अहम खबर, लोकसभा में रविशंकर प्रसाद तलाक सलासा बिल पेश कर रहे हैं और ऐवान में हंगामा देखने को मिल रहा है। माननीय रविशंकर जी, उसके बाद सर ऑनरेबल स्पीकर सर हार्ट पेशेंट, आपको भी मौका देंगे पहले माननीय मंत्री जी को। हाँ, प्रोसीजर हर चीज पॉइंट ऑफ क्या होता पॉइंट सर माननीय रविशंकर जी, माननीय रविशंकर जी, सर देयर आर टू थिंग्स सर, अभी रुकिए, आप बाद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज मूविंग द बिल एंड देन इंट्रोड्यूसिंग द बिल। आई विल मूव द बिल बिफोर इंट्रोडक्शन, लेट देम मेक देयर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू इट, दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स द रूल। उनको खड़े होकर बोलना है, उसके बाद बुलाएंगे इनको। अनुमति, केवल अनुमति मांग रहे हैं, माननीय सदस्य केवल अनुमति मांग रहे हैं। सर सर लेट मी अगेन क्लैरिफाई, आई एम ओनली सीकिंग द लीव ऑफ द ऑनरेबल चेयर टू मूव द बिल, देयर आफ्टर दे कैन पुट देयर ऑब्जेक्शन, आई विल रिप्लाई एंड इंट्रोड्यूस द बिल, इट्स वेरी सिंपल। I beg to move for leave to introduce a bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or is integral thereto. शशि थरूर जी, चलिए शशि थरूर जी, माननीय सदस्य गण आपको बुला रहे हैं। He has begged leave to introduce. वो अनुमति मांग रहे थे केवल। I regret to state that I rise to oppose the introduction of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019. I am not defending triple talaq, but I am opposing the text and draft and thrust of this bill. This bill conflates civil law and criminal law by criminalizing the act of triple talaq, which is an irregular form of divorce already null and void in our country post the decision of the Supreme Court in Shaira Banu versus Union of India. If the purpose of the bill is to address the subsequent acts related to triple talaq, the question before us is simple. Is the action of abandoning or deserting a wife and family without responsibility the criminal act, or is the form of desertion, namely doing it by uttering talaq? आप जब बिल पे डिबेट हो, जो डिटेल बोले, इनके प्रेमचंद, I have to give my reasons for opposing, sir. I am giving you 3 reasons for opposing the bill. So the question is, because sir, abandoning or deserting wives and dependents is not unique to the Muslim community, why not make a law which universally criminalizes the abandonment of family and dependents without taking responsibility, instead of just focusing on one community? By आप जब डिबेट हो, जब पूरी बात के ना, no sir, let me explain, sir. आप डिबेट हो, जब पूरी बात के ना, not a debate. It's the reasons for opposing introduction. हाँ, तो रीजन आप रीजन बता दीजिए। I'm giving it to you, sir. By framing the law. ऐसा नहीं है माननीय सदस्य। Sir, Honorable Speaker, sir, you have witnessed many such debates. Opposing introduction takes a few minutes, but not very many. Yes. By framing a law specifically criminalizing only Muslim husbands for a void act, an act already declared void by the Supreme Court like triple talaq,
without having a universally applicable law for the act of desertion. The bill is a textbook example, as the Law Minister well knows, of what is called a class legislation, which is pointed at one community or class, and that violates Article 15 and 14 of the Constitution. That's my first objection. Second, the bill does nothing to improve the status of Muslim women, who suffer from numerous other difficulties, including the right to unilateral divorce by their husbands, being coerced to engage in nikah halala, and so on. Therefore, this bill cannot claim the benefit of the exception under Article 15(3) or special provisions. Instead of protecting Muslim women, all this bill does is it punishes Muslim men. N.K. Premchandan. So finally, the bill also doesn't have any procedural safeguards and can be easily misused, thereby violating a person's rights under Article 21. I would therefore ask that instead of introducing the bill, he refer it to a standing committee, Your Honourable Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity to oppose this bill. I am opposing the introduction of the bill under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Speaker, sir, I may be allowed to substantiate the grounds which has already been explained by my learned friend Shashi Tharoor ji. I am opposing the introduction of the bill on 3 grounds. Madam. Appointed बात के दे विरोध Sir, here the point. भाषण नहीं दे बस. Madam, sir, this is आपको मैंने मौका दिया pointed बात. Definitely. I will abide by your ruling, sir. Sir, kindly see. Please. This is a constitutional right of a member to oppose the introduction of the bill. I am only suggesting the valid points according to me. So, number 1, the bill exceeds the legislative power of the Parliament as the subject matter comes under item number 5 of list 3 of schedule 7 of the Constitution. That is, the subject matter is in the concurrent list number 1. And number 2, the criminalizing a civil wrong done by a particular community, that is Muslim community, alone is discriminatory. That will be violation of Article 14, Article 15 and Article 25 of the Constitution. And further, the third objection, sir, is further the bill is violation of Article 13(2) of the Constitution, because the state shall not make any law violating the fundamental rights of the citizens of the country. These are the 3 grounds. Let me explain one by one, sir. Number 1 is criminalizing a civil wrong. Disputes arising after the marriage have never been considered as a crime within the purview of the criminal law. Marriage disputes in all religions are governed by personal laws and are treated as civil in nature. Personal law is defined as, personal law is, I'm reading from the Constitution, personal law is defined as a law that applies to certain class or group of people, particular person based on religion, faith and culture. Those are governed, I will conclude. Those are governed by the personal laws. So marriage, yes, I'm concluding. Marriage, divorce, succession, sir, please. Are personal laws and are considered as civil wrong. And coming to the criminal law, sir, criminal law is a crime against the state or against the society. See, here civil law deals with the behavior that constitutes an injury to an individual or a particular person. Here, what is this? A dispute arising out of a marriage will never come within the purview of the criminal jurisprudence. And finally, the Constitution, the bill exceeds the legislative, because in list 3 of schedule 7, item number 1 deals with criminal law, item number 13 deals with civil procedure, item number 5 marriage and divorce. So triple talaq comes under item number 5, which deals with marriage and divorce. This is neither criminal nor civil but personal law. So the government cannot deal this as a criminal matter, and this is abuse of the legislative power. I strongly oppose the introduction of the bill because it is violation of Article 14, Article 15, Article 25 as well as the schedule 3 of the Constitution, and it is violation that is objection. श्री असाउद्दीन ओवैसी जी. थैंक यू सर. मैं आपको शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे, मैं आपका अटेंशन चाहूंगा. रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर. अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर. आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा. इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका क्लासिफिकेशन रैशनल नेक्सस. सर यहां पर आप देखिए सर,
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस, योर बिल, purported bill, does not satisfy intelligible differentia. Secondly, why I say does not satisfy rational nexus? Because of the same thing. So this classification is not in any way reasonably linked to the purported object of the bill. Third point, sir, I'll complete. Third point, sir, because punishment. Sir, अगर कोई non-Muslim husband को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है? लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? मैं खत्म कर रहा हूं सर। देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए, आप बताइए, आप क्या ये गलत हो रहा है सर? माननीय रविशंकर प्रसाद जी। सर, पिछले दिसंबर में हमने इस बिल को लोकसभा से पारित किया था और राज्यसभा में पेंडिंग था सर, लेकिन चूंकि ये हाउस का कार्यकाल समाप्त हो गया, प्लीज सिट डाउन, अतः सर नो, आप पहले प्रस्ताव देते नो, अभी दिया आपने टाइम बाउंड नहीं, अभी दिया आपने, टाइम बाउंड है, ऐसे नहीं। माननीय रविशंकर जी, आई एम ऑन लिस्ट नाउ 6 नो, ही हैज नॉट। तो सर, ask the chair, not to me, ask the chair, not to me. सदन पे जिस भी माननीय सदस्य ने इस विषय पर अपना प्रस्ताव दिया था, मैंने सबको मौका दिया। माननीय सदस्य, आपने ये कागज टाइम बाउंड दिया है, इसलिए मैं माननीय रविशंकर जी को अपनी बात सर, जैसा मैंने बताया, पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था, उसके पहले ही पारित किया था, फिर बदलाव किया था, सुधार के लिए बदलाव किया था, और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था। लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा आई, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए। सर, एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं सबों की तकरीर सुन रहा था, हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून पर बहस, इंटरप्रिटेशन अदालत में होती है। लोकसभा को अदालत न बनाए, अपने सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करें, यह बात मैं पहले कहना चाहता हूं। सर, प्लीज आई डिडंट डिस्टर्ब सर, दूसरी बात, मैं उनकी सारी आपत्तियों का जवाब दूंगा। सर, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय को आप संपूर्ण जवाब देने दीजिए। आपको कोई बात इंक्वायरी करनी तो फिर जवाब देंगे आपका, लेकिन आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए सर। फिर माननीय सदस्य बैठिए, आप आसन पैरों पे बैठिए। तो सर, आपको बताऊं, शोकत राय जी बैठ, कि पहले सारा बानों का फैसला हुआ था सर। सारा बानों के फैसले में सर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ, माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें कि ये, माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें, ये जो 3 तलाक का मामला है, मैं फिर आज बैठ जाए, ये ह्यूमन माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट सर, मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए।
माननीय सदस्यगण, ये सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है और हम जब सदन में बैठे हैं तो सदन की गरिमा बनाने का काम हम सबका है। हम माननीय सदस्य एक टेबल पर जाकर दूसरे से बात कर रहे हैं, तीसरे टेबल जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मैं 3 बार विधानसभा का सदस्य भी रहा हूं, 1 बार लोकसभा का सदस्य भी रहा हूं। विधानसभा के अंदर भी जब आसन पैर पे खड़ा होता है तो कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं होता। हमारे सदन की गरिमा बनाने का दायित्व हम है। मैंने जितने भी माननीय सदस्यों का प्रस्ताव आया है सबको बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको आपको बोलने दीजिए। फिर भी आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो फिर मौका दूंगा, लेकिन आप बीच में डिस्टर्बेंस मत कीजिए। सर, सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक का मामला आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बेंच ने कहा इट इज फुल ऑफ सिन, ये भी जजमेंट में कहा गया है। और उसके बाद सर उन्होंने ये भी कहा, माननीय सदस्य में नाम से पुकारना पड़ेगा। आप आपस में माननीय सदस्य, आप आपस में बात करेंगे, नाम से पुकारना पड़ेगा। फिर सर चर्चा मत करें आप। सर इट इज अगेंस्ट, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप आपस में चर्चा मत करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सर। हाँ, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सब निगाह मेरे लिए एक है सर। मैं अलग नहीं है। कोई वो चर्चा करेंगे तो उनको टोकूंगा। सर, हमारा कहना बार बार है और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल राहुल जी बैठिए। ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। और आज हमको अपने अंदर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल बाद जब भारत का संविधान है तो क्या मतलब है कि खवातीन कोई हो, बहन कोई हो, कहा तलाक तलाक तलाक, तुम घर से बाहर, तुम्हारी कोई गुजारिश नहीं। और सर एक बात बार बार कही गई सर, भारत के संविधान की बात कही गई, मैं जवाब दे रहा हूं सर। भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है और मैं उसका 15(3) पढ़ रहा हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। ये भारत के फंडामेंटल राइट में कहा हुआ। और जहां तक कंकरेंट लिस्ट की बात है तो डाइवोर्स का विषय आता है। अब सर मैं आपको एक बात बार बार कहे कि जब वॉइड हो गया तो आप क्यों कर रहे हैं, तो सर हम एक बात खाली आपको बता। शशि थरूर जी, अधीर रंजन जी, आप नेता है सदन के, अपनी सीट पे बैठिए। सर नहीं, ऐसे सदन नहीं चलने वाला। अधीर रंजन बैठिए। अधीर रंजन जी, आपको जाकर बात करनी है, आप गैलरी में बात कीजिए। नहीं, अधीर रंजन जी चलता होगा, माननीय सदस्य, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपको बात करनी है, आप गैलरी में बाहर जाके बात करिए। नहीं नहीं माननीय सदस्य, नो नहीं। हाँ, माननीय सदस्य बैठिए। आसन, कोई माननीय सदस्य नहीं खड़ा है। आसन पैरों पे है, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे। आपका आसन है, आपका सदन है, आपका सदन है, आपका सदन है। आप ही गरिमा बना के रखो। आपका सदन है, प्लीज सिट डाउन। नो, आसन पैरों पे, नो, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, प्लीज सिट डाउन। आसन पैरों पे बैठ जाइए। आसन पैरों पे बैठ जाए, बैठ जाए। नहीं, हाँ, माननीय मंत्री जी। सर तो मैं बता रहा था कि आज भारत का संविधान है, 70 साल बाद क्या संसद को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय की गुहार कर रही हैं, वी शुड नॉट गिव जस्टिस टू देम। द लॉ इज टू गिव जस्टिस टू देम। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सर हमारे पास कोई डिटेल्स। सर मैं एक बात और कहूं सर, सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर जो हम लोगों ने विभिन्न स्रोत से मालूम किया है, डिटेल्स नहीं है सर। और
No, not माननीय speech. सदस्य, I am replying to you. I am replying, please. I am आप replying. क्रॉस क्वेश्चन आपका सदस्य जवाब दे रहे हैं Sir, माननीय मंत्री महोदय के अलावा कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा। Sir, 543 cases of triple talaq has come from 2017, in which more than 229 is after the judgment. तो क्या करें, ये महिलाएं जजमेंट को अपने घर में टांग लें? इसीलिए डिटरेंस जरूरी है। और मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसने ऑर्डिनेंस को अपहोल्ड किया है, और ऑर्डिनेंस के बाद 31 केसेस आए हैं। इसलिए सर, ये इंसाफ का मामला है, इंसानियत का मामला है, इस मुल्क की महिलाओं के लिए इज्जत आबरू का मामला है। इसीलिए हमारी सरकार खड़ी है सर, और इस पर हमारी प्रतिबद्धता है सर। हमको लगता था कि चुनाव में हारने के बाद वो इस बात को समझेंगे कि अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करता हूं सर, और सदन से आग्रह करूंगा इसको पास करें। प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। जो सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। डिवीजन माननीय मंत्री जी बिल को इंट्रोड्यूस करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। नो सीट नंबर इज देयर। आइटम नंबर 6। Sir, I beg to lay on the table of the House an explanatory statement showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage, Second Ordinance 2019. आइटम नंबर 7। Sir, on behalf of my colleague, Shri Shripad Yeso Nayak, I rise to move for leave to introduce the Homeopathy Central Council Amendment Bill 2019. नाज़रीन, आपको बता दें कि 3 ट्रिपल तलाक बिल जो है आज इंट्रोड्यूस की गई लोकसभा में, और ऑपोजिशन ने काफी हंगामा भी किया, जहां पर रविशंकर प्रसाद ने बिल को इंट्रोड्यूस किया और मुस्लिम खवातीन के लिए इस बिल को काफी मुफीद बताया है। वहीं ऑपोजिशन का कहना है कि ये बिल विक्टिमाइज कर रहा है एक खास तबके को, और जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वॉइड करार दिया है ट्रिपल तलाक को, फिर इस बिल का लागू होना कहीं सही साबित नहीं होता है। साथ ही साथ ये बिल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, ऐसा कहना था शशि थरूर का भी। और साथ ही साथ MIM के जो सदर है असुद्दीन ओवैसी, उनका भी काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला। बावजूद इसके जो है रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में 3 तलाक सलासा बिल जो है पेश कर दी लोकसभा में। और आपको बता दें साथ ही साथ ऑपोजिशन का साथ ही आपको बता दें कि ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि ट्रिपल तलाक बिल जो है ये एक खास कम्युनिटी को, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को विक्टिमाइज करेगा और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज होगा, और ऐसा हो कि इस बिल को अमेंड किया जाए और यूनिवर्सल एक बिल, यूनिवर्सल एक कानून बने जिसमें एक स्पेसिफिक तबका जो है सिर्फ उनको ही विक्टिमाइज न किया जाए। साथ ही असुद्दीन ओवैसी का यह भी कहना था कि क्यों ऐसा है कि एक दीगर तबके को सेम जो है इशू के लिए 1 साल की सजा हो सकती है, पर जब एक मुस्लिम तबके की बात आती है तो वहां पे मुस्लिम जो मर्द है उनको 3 साल की सजा इस मामले में हो सकती है। ये बात भी सामने आई कि पूरा मामला जो एक डाइवोर्स का होता है, मैरिज का होता है, वो सिविलियन इशू है, उसको क्रिमिनलाइज करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ जाता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये बिल जाती है। तो क्या एक बिल का इंट्रोड्यूस करना जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है, क्या वो सही है? खासतौर से तब जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है वॉइड करार दे चुकी है।
बावजूद इसके रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी जो है उनका कहना था कि मुस्लिम खवातीन जो है इस मामले को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, काफ़ी ज़्यादा उनको सहना पड़ता है। तो ये बिल जो है मुस्लिम खवातीन के लिए बेहतर और अफजल साबित हो सकती है। नाजरीन, हमने देखा कि लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा हंगामा ट्रिपल तलाक को लेकर के हुआ है और लगातार ओपोजिशन चाहती है कि, खासतौर से कांग्रेस चाहती है कि बिल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाए और इस पूरे बिल को लेकर के इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए जाए। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि बिल जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है एक ही तबके के खिलाफ और कहीं ना कहीं इससे जो तबका है काफ़ी विक्टिमाइज होगा, क्योंकि ये बिल जो है बासानी जो है गलत इस्तेमाल इसका किया जा सकता है अगर इसका कानून लागू हो जाता है। साथ ही आपको बता दें, ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम तबके के सिर्फ चंद एक हिस्से में, चंद एक सेक्ट में माना जाता है। मेजरली मुस्लिम तबके में ट्रिपल तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सही करार नहीं दिया जाता है, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स और जो उलमाए किराम है उनका कहना है। बावजूद इसके ये कहना कि ट्रिपल तलाक काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलिंग है मुस्लिम कम्युनिटी में, उसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत हो रही है। लेकिन जो सरकार है उनका ये मानना है कि इस ट्रिपल तलाक की वजह से मुस्लिम खवातीन जो है काफ़ी ज़्यादा उनको सहना पड़ता है और जो डेटा है डाइवोर्सेस का ड्यू टू ट्रिपल तलाक वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से ये बिल का पास होना, बिल का लागू होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि मुस्लिम खवातीन की जो है एम्पावरमेंट हो सके और वो जो है इस पूरे मसले को लेकर के ज़्यादा पीड़ित ना हो और उनको सहना ना पड़े। बट बावजूद उसके अगर ये कानून लागू हो जाता है, अपोजिशन का कहना है कि इसकी वजह से जो है मुस्लिम खवातीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ें लाहक हो जाएंगी, क्योंकि अगर उनके शौहर जो है जेल चले जाएंगे 3 साल के लिए तो उनकी फैमिली आइसोलेट हो जाएगी और उनका देखभाल करने के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं बचेगा। तो बावजूद इसके कि मुस्लिम खवातीन को और भी ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उल्टा ये बिल जो है उनको और भी ज़्यादा विक्टिमाइज करेगी, उनको और भी ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला करेगी। सबसे अहम बात जो अपोजिशन ने लोकसभा में इस बिल के इंट्रोड्यूस होने पर कही वो ये कि ये बिल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है। नाज़रीन, लोकसभा में तलाक सलासा बिल पेश हुई है। रविशंकर प्रसाद ने बिल को पेश किया। तलाक सलासा को लेकर ऐवान में हंगामा भी काफी ज्यादा हुआ। बिल पेश होते ही अपोजिशन ने हंगामा किया। लोकसभा में तलाक सलासा बिल पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया। 3 तलाक बिल मुस्लिम खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना है। सिलेक्ट कमेटी को बिल रेफर किया जाए, ये कांग्रेस का मुतालबा है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले से कानून मौजूद है। ओवैसी ने कहा दफा 14 और 15 के खिलाफ ये बिल है। लोकसभा को अदालत न बनाए, रविशंकर प्रसाद का कहना था। 3 तलाक में मुस्लिम मर्द को 3 साल की सजा, ऐसा MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि ये बिल जो है मुखालफत कर रही है। साथ ही केरल के RSP ने भी मुखालफत की है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने बिल की मुखालफत की। कांग्रेस ने बिल की मुखालफत की है। बिल में 3 साल की सजा की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। बिल पेश होने पर ऐवान में हंगामा हुआ। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने बिल को पेश किया। मरकजी हुकूमत ने 3 तलाक बिल को लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में 3 तलाक बिल को पेश किया गया।